لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وطبيبنا وشفيعنا وحبيبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيدنا وقدوتنا وسراجنا وفريدنا ونظامنا وأولانا ومولانا ومأوانا وملجأنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وقرة أعيننا وأشرفنا وأكرمنا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. آئیے ہمارا سب سے پہلے اس رسول ہاشمی باوقار کی بارگاہ بقدس پناہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نشاور کریں جن کے اشارے پہ ساری کائنات گردش کر رہی ہے. اس ذات ستودہ صفات ہستی کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نشاور کریں جو رحمت للعالمین بھی ہے، راحت العاشقین بھی ہے، مراد المشتاقین بھی ہے، شمس العارفین بھی ہے، سراج السالکین بھی ہے، شفیع المذنبین بھی ہے. اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں عقیدتوں کا تحفہ پیش کیا جائے جو سراج منیر بھی ہے، جو جان ایمان بھی ہے، جو کائنات کی جان بھی ہے، جو وجہ وجود کائنات بھی ہے، جو سبب وجود عالم بھی ہے، جن کا سب ہے، جن سے سب ہے اور جن کی الفت کے سب کے ہمیں عرفان رب ہے. سرکار کائنات صلی
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ در ہے نوری، گھر ہے نوری، در ہے نوری، گھر ہے نوری، آستانہ نور کا، در ہے نوری، گھر ہے نوری، آستانہ نور کا، نوری چہرہ، نوری جلوہ اور تلوہ نور کا۔ در ہے نوری، گھر ہے نوری، آستانہ نور کا، نوری چہرہ، نوری جلوہ اور تلوہ نور کا، اور آج تک حیرت میں ہے اہل خرد کا قافلہ، آج تک حیرت میں ہے اہل خرد کا قافلہ، آپ سے کیسے پڑھا اجگر نے کلمہ نور کا۔ آج تک حیرت میں ہے اہل عشق نہیں اہل خرد، آج تک حیرت میں ہے اہل خرد کا قافلہ، آپ سے کیسے پڑھا اجگر نے کلمہ نور کا۔ اور قادریوں آپ کے لیے اس لیے پر نور ہے تاریک دل کا آئینہ، کیوں روشن ہے؟ دوسرے مصرے میں سنیے، اس لیے پر نور ہے تاریک دل کا آئینہ، قادری شجرہ ہمارا اور وظیفہ نور کا۔ اس لیے پر نور ہے تاریک دل کا آئینہ، قادری شجرہ ہمارا اور وظیفہ نور کا۔ اور مانگنا ہے تو کیا مانگنا ہے؟ نور والے نور دو۔ کیا مانگنا ہے؟ نور والے نور دو، نورانیت دل میں بھرو، نور والے نور دو، نورانیت دل میں بھرو، مانگتا ہے آپ کا منظر بھی صدقہ نور کا، مانگتا ہے آپ کا منظر بھی صدقہ نور کا۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دھرتی پر چاہے جتنے دھرم مذاہب عقائد پنپ رہیں گے، پنپ رہے ہیں، چاہے کتنے بھی، جو ہمیں ملا، ہمیں سے ملا جو اہل سنت والجماعت کو ملا، امت رسالت کو ملا، وہ کسی کو نہیں ملے۔ میں تو کہوں گا کہ تین چیز ایسی ملی، شارٹ میں بتا رہا ہوں، تین چیز ایسی ملی جو نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملے۔ تین چیز ایسی ملی جو نہ کسی کو ملے نہ کسی کو، جیسے نبی ہمیں ملے، یہ بھی چھپڑانے کی جگہ ہے، بھڑک جانے کی جگہ ہے، جیسے نبی ہمیں ملے کسی کو نہیں، جیسی کتاب ہمیں ملی، جیسی کتاب ہمیں ملی کسی کو نہیں، جیسے
जैसा दीन हमें मिला किसी को नहीं। अब इतना कुछ मिलने के बाद भी हमें पता ना हो कि हमारी क्वालिटी क्या है, हमारी हैसियत क्या है, हमारी अहमियत क्या है, हमारी पर्सनालिटी क्या है, हमारा वकार क्या है, हमारा वैल्यू क्या है। तो मैं तो नहीं समझता कि अब उन्हें भी कुछ लेसन या सजेशन देने की जरूरत है। इतनी मजबूत चीज, इतनी बेशकीमत चीज, इतनी कीमती चीजें हमें मिली। जिसकी दुकान अच्छी चलने लगती है, रोजाना 5,000 कमाने लगता है, तो दुकान का भी नक्शा बदल देता है, लिबास का भी नक्शा बदल देता है और मकान का भी नक्शा बदल देता है। क्या बताने के लिए कि हमारे अंदर खुशहाली आ गई, हमारे अंदर ऐसे आकाओं की चौखट मिली। शायद हमने अपने आप को नहीं पहचाना, इसलिए कुछ नहीं पहचाना। मन अरफ नफ्सह फक़द अरफ रब्बह। जो अपने आप को पहचान लेता है वो अपने रब को पहचान लेता है। कुरान से, हदीस से, आयात से, खिताबात से, तकारीर से, अशआर से, नसीहतों से, फन से, मवाइज़ हसना से मैं जर्रा बराबर भी सूझो बूझो तो इस बात का पता लगाना आसान है कि जो अपना इरफान हासिल कर लेता है वो रब की मार्फत हासिल कर लेता है। हम खुद ही को नहीं पहचान पाए कि इस 18,000 आलम में, कितने आलम? 18,000 आलम में बेशुमार मखलूकात, कुछ बर्री मखलूकात, कुछ बहरी मखलूकात, कुछ फज़ाई मखलूकात, बेशुमार मखलूकात। उन तमाम मखलूकात में अगर अशरफ और अकरम किसी को बनाया गया है तो इंसान को बनाया गया है। मैं तो कादरियों यहाँ पे ठहर करके और आगे बढ़ के करता हूँ। हम सिर्फ इंसान नहीं है, हम सिर्फ बेशुमार उम्मतों में हम खैर उम्मत हैं। बेशुमार उम्मतों में हम खैर उम्मत है। उस खैर उम्मत में भी हमें हक का दामन लेना है। उस हक के दामन में भी हमें गौसे आजम की चौखट में गौर तो करो कि हम हैं क्या, पहचानो तो कि हमारी हैसियत क्या है, थोड़ी बड़ी दिल से जान लो कि हमारी क्वालिटी क्या है। अगर हमने इसको समझ लिया होता तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होती। और न मामला भी ऐसा है कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पे कलामे नर्म नाजुक बेरस। ऐसी बारगाह में भी एक ही बात को 1000 मरतबा कहने की क्या जरूरत पड़ती है? ये बल्ब जलता है, ये बल्ब जलता है, कुछ बोलिए, ये बल्ब जलता है। चाहे वो आलिम हो या अंगूठा छाप हो, शहर का रहने वाला हो या देहात का रहने वाला हो, कभी तो जरूर देखा होगा कि कुछ कीड़े मंडराते रहते हैं। थोड़ा उससे पूछा जाके किस कॉलेज में तुमने पढ़ा है, कहां की तुम्हारी तहकीक है, किस संस्था से तुम मिले हो, तुम्हें किसने ये एड्रेस बताया, तुम्हें कैसे ये मालूम हुआ कि ये नूर है जिसका ऐसा ज़हूर है, क्या तेरे अंदर शऊर है? जब ऐसा ही तो बताया किसने? आज तो बल्ब जलने लगे, कल जब मोमबत्ती जलती थी, चिराग जलता था, तो देखा कि ना जाने कितने
की 2 बच्ची है। तो कहा कि ऐसा है कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बताऊंगा जब अपना अंजाम देख लूंगा। इंतकाल हुआ, अंजाम अच्छा देखा, ख्वाब में आए, बुढ़िया ने वही सवाल दोहरा दिया कि ये बताइए कि कौन बेहतर है। कहा कि सुन, अंजाम हमारा अच्छा है, इसलिए तेरी बकरी के दूध से हमारी दाढ़ी बहुत अच्छी है। क्या मतलब? हमें जब हमारे अंदर कोई कैपेसिटी ना हो, समझ का कोई म्यार ना हो, और हमने तो शरीरे अकायद अकीदे की जबरदस्त किताब, जब इंसान अदब व तहजीब और शरीयत हक्का की रोशनी में होता है तो उसका मकाम आम फरिश्तों से ऊपर होता है, आम फरिश्तों से। वरना अगर उससे हट जाए, कट जाए, निकल जाए, तो कहा है कि कल अनाम वो चौपाई की तरह है, बल्कि उससे भी ज्यादा हटके हुए। क्या मतलब? अगर हमारे अंदर सूझबूझ नहीं है, फहमो फिरासत नहीं है, अक्ल दानाई नहीं है, इश्क इरादत तो उल्फत नहीं है, मोहब्बत नहीं है, सब धान साढ़े वाइस बसेरी, तो फिर हम अपने आप को तौल सकते हैं कि हम कहां हैं, ये हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस कैटेगरी में हैं। इसलिए मेरे जियालो, चाहने वालों, मोहब्बत करने वालों, इसको इरादत की जंबील में उल्फते सरकारे सैयदुल हिंद और उल्फते हुजूर इमाम मिल्लत को सजाने वालों, गोशे गोश से सुनो और समझने की कोशिश करो। अगर नजर पड़ गई तो नजर की भी 2 किस्में होती हैं। नजर की भी मोहब्बत की नजर होती है और गजब की नजर होती है। एक जलाल होता है, एक गजब होता है, दोनों पर एक जलाल होता है और एक। आपकी इस्लाह के लिए अगर जलाली नजर है तो ये सोने पर सुहागा, और अगर बेराहगी की वजह से गजब की नजर पड़ गई तो फिर गजब ही गजब है। फिर क्या है? गजब ही गजब है। पता चला आना जाना, लाना ले जाना, ठहरना, खाना पीना, दुकान बंद करना, मशक्कतें झेलना, सफर की सोबतें, पैसे खर्च करना, सब बेमाना, सब बेमाना। अगर हमें खुद से कोई बात समझ में नहीं आती तो जो लेसन दिया जाता है वो क्यों नहीं समझ में आता है। मैं यहां पर ठहर करके इस दौरे पूर्व के दम में जिन चीजों की कमियां हैं उस तरफ तवज्जो दिलाना चाहूंगा। ये सीना इतना काला हो गया, इस पर कोई बात असर करती क्यों नहीं। हश्र का जिक्र हो रहा है, अज़ाब का जिक्र हो रहा है, कहरे इलाही का जिक्र हो रहा है, बकरा का जिक्र हो रहा है, कब्र का जिक्र हो रहा है, अस्तहा का जिक्र हो रहा है, कोड़े का जिक्र हो रहा है, दीप का जिक्र हो रहा है, हर चीज का जिक्र हो रहा है, असर क्यों नहीं होता। तो पता ये चलेगा कि असर इसलिए नहीं होता है कि पूरा ब्लैक हो गया। क्या हो गया है? और जब ये ब्लैक हो जाता है तो ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। जब ये दिल काला हो जाता है तो फिर इंसान की नजर में न नूर समझ में आए, न जुल्मत समझ में आए, न हिदायत समझ में आए, न दलालत समझ में आए, न मुर्शिद समझ में आए, न शराबी समझ में आए, न अपना समझ में आए, न बेगाना समझ में आए, न हक समझ में आए, न बातिल समझ में आए, न हम अकीदा समझ में आए, न बदअकीदा समझ में आए, न खलवत समझ में आए, न जलवत समझ में आए, न दूर समझ में आए, न नजदीक समझ में आए, न नूर समझ में आए, न शऊर समझ में आए, कुछ भी समझ में नहीं आता है। बस जरूरी है कि पहले कल्ब की तारीकी को खत्म किया जाए। क्या किया जाए? आज जिक्र भी होगा। क्या होगा? वो जिक्र फॉर्मेलिटी नहीं है, वो तो अहले इरफान का इतना नूरानी सिलसिला है कि चाहे तू जिस शौक से, जिस साबुन से, जिस चीज से धो करके चमाचम करके
सैयदुल हिंद के दरबार में कहा सुन, बारगाहे कुतुबुल अक़ताब ने कहा सुन, ज़रात-ए हमशर शरीफ ने कहा सुन, जब दुनिया की मंडी में न मिले तो गुंबद-ए खज़रा की छांव में चले जाए। जब इस दुनिया की मंडी में न मिले तो कहां चले जाना? गुंबद-ए खज़रा की छांव में चले जाना। इसलिए जब इस वर्ल्ड के अंदर चाहे जितनी तरक्की कर जाए, जितनी प्रोग्रेसिव हो जाए, चाहे जितनी ऊंचाई पर चला जाए, ना मिले तो हर दौर में अगर सारे तबका का ना मिलेगा तो नबी उम्मी की बारगाह से मिलेगा, रसूल हाशमी की बारगाह से मिलेगा, राहतुल आशिकीन की बारगाह से मिलेगा, पहले आदम व बनी आदम की बारगाह से मिलेगा, नबी पाक की बारगाह से मिलेगा। वो ऐसा खतीब है जो चेहरे को भी सुथरा कर दिया करता है, वो दिल को भी सुथरा कर दिया करता है, जो वजूद को भी पाकीज़ा बना दिया करता है, जो बाहर को भी साफ कर दिया करता है और अंदर को भी क्लीन कर दिया करता है। जब आप रसूल हाशमी की बारगाह में पहुंचे, हमारा ये ईमान है, हमारा ये अकीदा है, हमारे अंदर का हर हिस्सा ये बोलता है कि अगर कायनात में जहां भी बिगड़ रहा हो, अगर बनेगा तो या तो नबी के घर से बनेगा या नबी वालों के घर से बनेगा। कहां से बनेगा? या तो नबी के घर से बनेगा या नबी वालों के घर से बनेगा। न इधर से बनेगा ना उधर से बनेगा। इधर उधर से बनने वाला नहीं है। दिल काला है। दिल का मामला दल की तरह होता है। दिल का मामला दल की तरह होता है। कल्ब का माना होता ही है कभी इधर कभी उधर, उलटपन। कल्ब का मामला उलट, अच्छा जहाँ है नहीं जानते हैं, उसके यहाँ शिरकत करें, अच्छा नहीं करते हैं, ये काम करें, अच्छा नहीं करते हैं, अगर 2 पैसे में प्रॉफिट हो रही है उसको दें ना, तो 10 रुपए दे रहा है उसको दें, ये उलट पलट होता रहता है। इसको मुकम्मल सुकून देने का रास्ता सुन्नत, इसको मुकम्मल सुकून देने का रास्ता सुन्नत। चलिए हमने रिज़्क़ हराम खाया, दिल काला हुआ, झूठ बोले काला हुआ, निगाहें गलत जगहों पे गई, दिल काला हुआ, सूद का पैसा खाया, दिल काला हुआ, ताड़ी और शराब को होठों से लगाया, दिल काला हुआ, बदतमीजी की, दिल काला हुआ, बेअदबी का शिकार हुए, दिल काला हुआ, फ़वाहिश मुनकरात के करीब गए, दिल काला हुआ, झूठ बोले, दगा दिया, ग़ीबत की, कीना रखा, हसद किया, क्रोध रखा, अदावत की, नफ़रत फैलाई, इत्तेहाद तोड़ा, बुराई करते रहे, दिल काला होता गया। एक गलती होती है तो एक काला धब्बा बैठता है सीने पर। दिल पर क्या बैठता है? एक काला धब्बा बैठता है। दिल कोई कैमूर की पहाड़ी का नाम नहीं है या पूरे आसमान का नाम नहीं है। जिसके 56 इंच का सीना है उसका भी दिल इससे ज्यादा बड़ा नहीं है। हमारा दिल है क्या? एक छोटा सा गोश्त का लोथड़ा है। अगर वो सही तो सब सही। इतना बड़ा वजूद है। हमने कहा आप मेरे घर आए नहीं, दिल नहीं चाहते, आप उसे उसमें नहीं गए अंदर, कहा दिल नहीं चाहते, आपको हमने 12 बजे बुलाया था, आप तशरीफ नहीं लाए, कहा दिल नहीं चाहते, हमें इतना अच्छा खाना सजा हुआ था नहीं खाया, कहा दिल नहीं चाहते। पता चला इतना बड़ा और सब पर कब्जा जमाए हुए, तो जो कब्जा करने वाला सुल्तान है कहीं उस पर बैठा हुआ शैतान तो नहीं है? जो इतना बड़ा सुल्तान है कहीं किसी और का कब्जा तो नहीं है? शैतान का कब्जा नहीं होना चाहिए, बल्कि मुर्शिद
پتھر پہ لگا حالات، اور ہوش و خرد میں کچھ بھی نہیں ہے، دنیا سے بیگانہ ہوں، ہوش و خرد میں کچھ بھی نہیں ہے، دنیا سے بیگانہ ہوں، ایک دفعہ جو ان کا میں نے جام لبالب ڈھالا، اور میں ہوں سگے سلطان امجد، مجھ کو بھلا کیا خوف و منظر، میں ہوں سگے سلطان امجد، میں ہوں سگے سلطان امجد، مجھ کو بھلا کیا خوف و منظر، دیکھو دیکھو میں نے گلے میں قادری پٹا ڈالا ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہے کہاں پہ میں نے چھوڑا ہے؟ آپ کو تو نہیں چھوڑ سکتے، تقریر جہاں پہ چھوڑی، یاد ہے کہاں پہ چھوڑا ہے؟ جب 2 منٹ میں ایسا ہو گیا تو گھر جانے کے بعد سب یہی رہ جائے گا۔ دل اگر دل ہو جائے تو پھر دلدل ہو جائے، دل جب دل ہو جائے تو دلدل ہو جائے، اور جب دل رہ جائے تو مصطفیٰ کے چمن کا گل ہو جائے۔ تو یہ دل عدل بدل ہوتا رہتا ہے، اسی لیے اس کو عربی میں قلب کہتے ہیں، قلب کہتے ہیں۔ اچھا ایک بات مجھے بیٹھے بیٹھے ذہن میں آ گئی، بات کو سمجھنا ہے، تھوڑا سا فکس بتا دو بولنے کو دل بھی کالا، آپ نے سنا ہوگا حجر اسود بھی کالا، حجر اسود، حجر کا معنی ہوتا ہے پتھر اور اسود کا معنی ہوتا ہے تو کالا تھوڑی، وہ حجر ابیض، کیا ہے وہ؟ حجر ابیض جنتی پتھر، سفید پتھر تھا وہ۔ ہمارا دل کالا ہوتا ہے، سارے گناہوں کو سمیٹ لیں اور گنہگار بنتے جائیں تو دل کالا ہوتا ہے۔ حجر اسود کا کرم دیکھو، وہ کالا ہوا ہے، کالے دل کے کالے پن کو کھینچ کر کے اس کو کلین بنا کر، گنہگار کے گناہ کو کھینچ کر کے خود کالا ہوا، خود کالا ہوا۔ اور یہاں تو معاملہ یہ ہے، ہمارے جب دل کالا ہوا تو کیریکٹر کالا ہوا، کارنامہ کالا ہوا، کردار کالا ہوا، چہرہ کالا ہوا، پرسنالٹی کالی ہوئی، زندگی کالی ہوئی، رات کالی ہو گئی، دن کالا ہو گیا، لمحہ لمحہ کالا ہو گیا، سماج میں کالا ہے، سوسائٹی میں کالا ہے، خاندان میں کالا ہے، برادری میں کالا ہے، علاقے میں کالا ہے۔ ہمیں کیا دل کو کالا بنایا کہ پورا کالا کالا، کالا کالا۔ تو اس کالے کالے سے اجلا اجلا بننے کا بھی کوئی راستہ ہے؟ ہماری دنیا کے اندر ایک سسٹم ہے کہ اگر آپ بہت اچھی طبابت جانتے ہیں، بہت اچھی حکمت جانتے ہیں، بہت اچھی بہادری جانتے ہیں، بہت اچھا ہنر جانتے ہیں، بہت اچھا خود جانتے ہیں، تو سب میں بتانا کچھ اپنے پاس رکھے رہنا، وہ نبی کا کرم ہے۔ سبحان اللہ۔ میں یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ سلسلے کی کڑیوں اور نورانیت کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ نبی یہ صرف بتا دیا جس کے اندر اس بات کا تجسس رہا کہ ہمیں پانا ہے، ہمیں حاصل کرنا ہے، تو ہم نے گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھ کر کے مدینہ منورہ کی طرف رک کر کے رسول ہاشمی کی بارگاہ میں معجزہ پیش کیا۔ اے کائنات کے حکیم، اے دونوں جہان کے سلطان، اے ہمارے ماؤں ملجا،
تنقید کرنے کے لیے مت جا، ان کے کراف کو سمجھنے کے لیے مت جا، اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے. کس لیے جا؟ اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے جا. جب اتنا کہا رسول ہاشمی کی بارگاہ اقدس سے جو ہمیں آواز آئی وہی آئی، جا امام ملت کی بارگاہ میں چلا جا، جا علماء ملت کی بارگاہ میں چلا جا، جا مفتیان ملت کی بارگاہ میں چلا جا، جا سید الہند کی بارگاہ میں چلا جا، جا ہمارے چاہنے والوں کی بارگاہ میں چلا جا، تجھے نسخہ مل جائے گا. ہم بھی سوچنے لگے امریکہ نہیں دے پایا، اٹلی نہیں دے پائی، برطانیہ نہیں دے پایا، رشیا نہیں دے پایا. جو مٹی میں، جو مٹی کے اندر جو ماشاءاللہ مردہ ہے وہ کہاں سے دے گا؟ میں یہی بتانا چاہتا ہوں مردہ دلوں کو، میں یہی لیسن دینا چاہتا ہوں ایسے مردوں کو کہ آنکھ والا تیرے چوبن کا تماشا دیکھے ہی گئے گور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. جب امام ملت کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ کہا کہ آخر یہ دل کیسے اجلا ہوگا، یہ دل کے اندر لائٹ کیسے آئے گا، یہ دل کے اندر اجالا کیسے آئے گا، تو امام ملت نے کہا آج کی اس رات میں، وجہ ہے آج کی اس رات میں، اسی لیے تو کس چیز کا اہتمام کیا ہے؟ ذکر. کس چیز کا؟ ہمارا ذکر اللہ کا ہوگا، لب میں استغفر اللہ ہوگا، لب میں لا الہ الا اللہ ہوگا، لب میں اللہ کی صدا ہوگی، لب پر اللہ کا ذکر ہوگا، ذکر لب پر ہوگا، اور دل آئینہ بنتا چلا جائے گا. دل
तरस कर जाएगा, कब सुनामी लहरा जाएगी, कब आसमानी बिजली गिर जाएगी, कब करंट में चिपक जाएगा, कब एक्सीडेंट कर जाएगा, कब दीवार गिर जाएगी, कब मर्डर कर दिया जाएगा। हालात इतने नाजुक है, क्या होगा पता ही नहीं है। तो जब जिंदगी का भरोसा नहीं तो तौबा अभी की जाए, तौबा कैसे की जाए, तौबा अभी की जाए और इस नियत के साथ की जाए कि हम पापी हैं, खाती हैं, आसी हैं, गुनहगार हैं, खताकार हैं, इतिहासकार हैं, मेरे दिल भी काले हैं, करतूत भी काले हैं, कारनामे भी काले हैं, कैरेक्टर्स भी काले हैं, किरदार भी काले हैं, सब काले हैं, लेकिन अल्लाह तेरे वाहिद बारगाह में उजाले ही उजाले हैं। मायूस कोई नहीं पलटता है। अगर सच्चे दिल से तौबा की, अश्क नदामत बहे तो काला दिल खोबरू हो जाएगा, काला दिल रोशन हो जाएगा, काला दिल उजला हो जाएगा। और जब दिल उजला हो जाएगा तो उसमें गुंबद खजरा की तजल्ली भी नजर आएगी और सरकार सैयद हिंद का जलवा भी नजर आएगा। क्या नजर आएगा? जलवा भी नजर आएगा। तो हमने इस बारगाह में पहुंच करके किसी के कहने पर जबरदस्ती नहीं, किसी के कहने पर, और अगर जबरदस्ती भी कर लिया है तो जबरदस्ती नहीं। थोड़ी देर एक मौलाना किसी बेचारे देहाती को आज तक तुमने जुमा की भी नमाज नहीं पढ़ी है, चल गया पढ़ ली। अच्छा किया या खराब किया? अच्छा किया या खराब किया? अरे अच्छा किया या खराब किया? तो अगर हल्का इरादत में गौसे आजम के हाथ पे हाथ चला गया, शहजादे गौसे आजम के हाथ पे हाथ चला गया, नहीं जानता था बैत किसे करते, नहीं जानता था कि हाथ देने से क्या होता है, उसे यही मालूम ना हो कि ये क्या जा रहा है। लेकिन जब दिमाग खुला, दिमाग का दरीचा खुला तो बात समझ में आई। जब तक टिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक टिके न थे तो कोई पूछता न था। तूने हमें खरीद के अनमोल कर दिया, तूने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। नूरानी सिलसिला है, नूरानी कड़ियां हैं। ये बात बारहा बताई जाती है कि जैसी निस्बत होती है वैसी कीमत होती है, जैसी निस्बत होती है वैसी कीमत होती है। उस पर बात करूंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, सीधे सीधे चले। निस्बत हमारे यहां निस्बत ही की है कीमत। जमीन पर भी हम जन्नत दिखाएंगे, जमीन पर भी हम, वो जाज अगर हज को गए, मोतमरीन अगर उम्रे को गए, शहरे रसूल में पहुंचे, मस्जिद रसूल में पहुंचे हैं, तो वहां भी एक हिस्सा है जिसे जन्नत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जन्नत कहा जाता है, रियाजुल जन्नत। वो भी जमीन का टुकड़ा, यहाँ भी जमीन का टुकड़ा, हर जगह जमीन का टुकड़ा। ये जमीन जन्नत कहा, नबी का जो बार बार कदम लगता है, नबी का जो बार बार, वो मस्जिद, वो मेंबर खत्म नबुव्वत से मेंबर शरीफ से घर तक, घर से मेंबर शरीफ तक, मेंबर शरीफ से घर तक, ये रोजाना 5 मरतबा आना, 5 मरतबा जाना। मेरे नबी का कदम लगना, नबी का कदम लगे तो जमीन जन्नत हो जाए। अब थोड़ा इसी निहज पर अपने आप को भी तौलने की कोशिश कीजिए कि हम मिट्टी नहीं है, मिट्टी से बने हैं। हम मिट्टी नहीं है, मिट्टी से बने हैं। कि पहाड़ का ये आलम है कि मिट्टी जन्नत हो जाती है। मिट्टी जब जन्नत का टुकड़ा हो सकती है तो क्या गौसे आजम के शहजादे के हाथ पर टिका हुआ निस्बत की बहार लूटे हुए जन्नती नहीं हो सकता? जन्नती नहीं होगा। जब मिट्टी जन्नत हो जाए तो
सिर्फ बिहार वाला नहीं है, झारखंड वाला भी, छत्तीसगढ़ वाला भी है, बंगाल वाला भी है, एमपी वाला भी है, एपी वाला भी है, राजस्थान वाला भी है। जिसने निस्बत की बहार आई वो बहार वाला है, और जिसके हिस्से में निस्बत की बहार गई वो बहार वाला है। और वो कितना बाहर है इनकी जेब तो मैं नाम करके बता दूंगा। हो सकता है अकीदे से बाहर, हो सकता है ईमान से बाहर, हो सकता है इस्लामिक बाउंड्री से बाहर, हो सकता है सरहद इस्लाम से बाहर, हो सकता है दीन की सीमा से बाहर, हो सकता है हक़ानियत से बाहर, हो सकता है सदाकत से बाहर, हो सकता है ज्ञानकारी से बाहर, हो सकता है अमानत से बाहर, हो सकता है हर अच्छे अमल और अच्छे किरदार से बाहर हो। इसलिए कि जिसके हाथ में अच्छी निस्बत नहीं है उसके वजूद की कोई कीमत नहीं, उसके वजूद की कोई। तो अगर हम और आप अपने मुकद्दर पर नाज करें, जितना नाज करें, जितना नाज करें, अगर यहां सोच नहीं पा रहे भीड़ की वजह से कि वो सोच कहीं टकरा कर रह जा रही है, तो घर जाकर के अकेले कमरे में बैठ करके थोड़ी सी खिड़की खोल करके सोचिएगा, ताकि आसानी के साथ उठा जाए कि हमने हाथ दिया, हम जीत गए, हमने हाथ पे हाथ रखा, हमें हाथ मिल जाए तो गौसे आज़म का साथ मिल जाए, हाथ मिल जाए तो हसनैन करीमैन का साथ मिल जाए, हाथ मिल जाए तो अपने पाक का साथ मिल जाए, हाथ मिल जाए तो अली मुर्तज़ा का साथ मिल जाए, हाथ मिल जाए तो रसूल हाशमी का साथ मिल जाए। और जिसके इन अज़ीमुल मर्तबा हस्तियों का साथ मिल जाए तो दुनिया में अल्लाह की रहमत का साथ मिल जाए, आखिरत में जन्नत का साथ मिल जाए। इसलिए हमें इस बात को महसूस करना होगा कि हम कोई आम फाम जगह पे नहीं आए। 60 साल के हम बोले थे कि खानकाहें बहुत है, निस्बतों की बहार कहाँ जाकर के कट हो जा रही है, या निस्बत की बहार है ही नहीं, या कोई अनजान वाला मामला है। यहाँ जितना है सब जान पहचान वाला मामला। नस्ल को देख लो, नस्ब को देख लो, सिलसिला को देख लो, वसीला को देख लो, तार को देख लो, कनेक्शन को देख लो, रब्त को देख लो, राबते को देख लो, कंडीशन को देख लो, रेसाई को देख लो, प्रमुख को देख लो। इतना इतना सौलिद है, इतना सीधा है, इतना जबरदस्त है कि न ठोकर है न फिसलन है, न ठोकर है न फिसलन है। आया जाए देखा जाए, हाथ हमने दिया है किसके हाथ में, किसके हाथ में? बगाहे को मुर्शिदे बता के हाथ में दिया, किसके हाथ में दिया? अगर एक एक साथ का जिक्र किया जाए तो ना जाने कितनी रात दरकार है। उन सवाते कुदसिया की अज़मतें क्या है? हमें नूरानी कनेक्शन मिला है। मैं पूरी वहाबी लॉबी को गारंटी के साथ तनके की चोट पर कहता हूं, अगर उसे सिलसिले की पाकीज़ा कड़ी नहीं मिली तो उसे नबी का नूर नहीं मिल सकता, उसे नबी का नूर नहीं मिल सकता है। और एक बात और मैं कहूंगा, उसको बहकाना बहुत आसान होता है जिसका कहीं से कोई राबता नहीं हो, उसको बहकाना बहुत। आज भी आप जिस इलाके में रहते हो, कहीं से अगर वो मुरीद नहीं है, हल्क़े इरादत में शामिल नहीं है, तो उसी पर अटैक होता है, उसी पर हमला होता है। बहकाने वाले हमें तस्वीर में उसी को लेते हैं और फिर उल्टी सीधी बताना शुरू करते हैं। और जो मुरीद होता है कहा सुन हम मुरीद है, मरीद की जरूरत नहीं है। ज़हनी जिस्मानी एतकादी मरीज की भी जरूरत नहीं। हमें मालूम है कि क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसका पावर क्या है, इसकी पहुंच क्या है, इसका नूर क्या है, इसकी लाइट क्या है, इसकी रोशनी क्या है, इसकी बरकत क्या है, इसमें सआदत क्या है, इसमें फलाह क्या है, इसमें सलाह क्या है, इसमें फलाह बहबूदी क्या है। तुझे बताने की जरूरत नहीं है, हमें
میرا ہاتھ تو چلا گیا، سرکار سید الہند کا ہاتھ ملا۔ آج اب یہ بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں نظر آئی نہیں، دکھائی نہیں، ہاتھ میں ہاتھ ملائی نہیں، تو پہنچا کیسے؟ اس پر جاؤں گا تو بخاری شریف کی حدیث کی روشنی میں بہت ساری باتیں ہو جائیں گی، مختصر میں بتانا چاہوں کہ روحانیت کا کنیکشن جب موبائل کا کنیکشن بغیر وائر کے ہے، جب موبائل کا کنیکشن بغیر وائر کے ہے، یہ سب ٹاور تو کبھی فیل بھی ہو جاتا ہے، یہ سب ٹاور کبھی فیل بھی ہو جاتا ہے، اور نیٹ کام نہیں کر رہا ہے، پیک ہے تو نیٹ کام نہ کرے، نیٹ ہے تو پیک کام نہ کرے۔ عجب یہ پیک اور نیٹ کا معاملہ ہے۔ میں گنبد خضرا تو ایسا ٹاور ہے جو کبھی فیل ہونے والا نہیں ہے، اور اسی ٹاور سے کنیکشن سرکار سید الہند کے گنبد کو، جب وہ فیل نہیں تو یہاں سرکار سید العلماء کی کے دستے اقدس پہ ہاتھ رکھا، روحانی طور پر ہمارا ہاتھ پہنچ گیا سرکار سید الہند کے ہاتھ پر۔ پاور کیسا ہے؟ ٹھوکر مارے مردے کو تو زندہ ہو جائے، مٹی اٹھائیں تو سونا ہو جائے، تو ماں کی بچیا کے دھن میں ہاتھ لگا دیں تو دودھ کے دھارے جاری ہو جائے۔ اتنا لمبا چوڑا سون، اتنی لمبی چوڑی ندی، جلال کا ایک تیور دیکھے تو حالت خراب ہو جائے، رخ پلٹ لے۔ یہ پاور ہے کس کا؟ میرے سرکار سید الہند کا۔ یہیں سے ایمان کو تقویت ملی، عقیدت کو تقویت ملی، ارادت کو تقویت ملی، الفت کو تقویت ملی، محبت کو تقویت ملی، کہ جب ہمارا سید الہند ہم گھر والا ایسا ہے تو تب بات والا کیسا ہے؟ سرکار سید الہند نے کہا میرا پوت لے کر کے آیا ہے نا، میرا بیٹا لے کر کے آیا ہے نا، میرا چہیتا لے کر کے آیا ہے نا، میرا لاڈلا لے کر کے آیا ہے نا، میرے پوت کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا ہے تو میری بارگاہ میں آ گیا۔ جب میری بارگاہ میں آ گیا تو یہی نہیں چھوڑا جائے، آگے چل، آگے چل۔ کہاں جایا جائے؟ کہا میرے بابا کی بارگاہ میں، پیر لادانی محبوب ربانی، قطب یزدانی شیخ جیلانی، پیروں کے پیر، میروں کے میر، روشن ضمیر پیرانے پیر، پیر دستگیر، غوث اعظم کی بارگاہ میں چلو۔ اچھا، امام ملت کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، یہ ہاتھ چلا گیا سرکار سید الہند کے ہاتھ پہ، اور وہاں جو ہاتھ رکھا تو پھر وہ ہاتھ چلا گیا غوث اعظم کے ہاتھ پہ۔ میں کہتا ہوں جسے غوث اعظم کا ہاتھ مل جائے اس سے رب کے کرم کا ساتھ مل جائے۔ غوث اعظم بولتے چلو، لائف ختم ہو جائے گی۔ غوث اعظم کی تعریف، غوث اعظم کی توصیف، غوث اعظم کا مرتبہ، غوث اعظم کا رتبہ، غوث اعظم کی کرامت، غوث اعظم کی زیادت، غوث اعظم کی امانت، غوث اعظم کی شان، غوث اعظم کی شوکت، غوث اعظم کا چہرہ، غوث اعظم کا سراپا، غوث اعظم کا جمال، غوث اعظم کا حسن، غوث اعظم کی سیرت، غوث اعظم کی صورت، غوث اعظم کا اقتدار، غوث اعظم کا منصب، غوث اعظم کی ولایت، غوث اعظم کی کرامت، غوث اعظم کی زیادت، غوث اعظم کی شان، غوث اعظم کی شوکت نہیں بیان کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ غوث اعظم اس ذات کا نام ہے جس کی اصل بھی لاجواب ہے، جس کی نسل بھی لاجواب ہے۔ غوث زمدانی کی بارگاہ میں پہنچے، کہا جب یہاں آ گئے، جب یہ میسج ملا کہ ہم غوث اعظم تک پہنچ گئے، میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اپنی کوالٹی کو سمجھو، اپنی اہمیت کو سمجھو کہ آپ کہاں پہنچے ہو، اپنا منصب سمجھو کہ آپ
2 मिनट गौसे आजम तक पहुंच गए। गौसे आजम ने कहा कि जो नूरानी कड़ी है, नूरानी सिलसिला है, तो बगदाद ही तक नहीं रखा जाएगा, आगे चलो। करबला कहा? करबला तक। और जो करबला में गए तो हमने कहा अब बला कहा? अब तो बला में बला, अब बला कहा? बला पर बला, जहां बला पर बला टूटती है उसे करबला कहा जाता है। और जो करबला वालों की मोहब्बत रखता है उसकी बला पर बला टूटती है। बला की हिम्मत नहीं जो करीब आ जाए, तो चलते कि हमारे भी इसको इरादत का जज्बा पक्का होना चाहिए। गौसे आजम ने वहां पहुंचाया। जब करबला पहुंचे तो करबला वाले ने कहा यही नहीं छोड़ा जाएगा, हम ही दीन को बचाने वाले हैं, दीन की नैया को साहिल मुराद तक पहुंचाने वाले हैं। चादरे रहमत में छुप करके इस्लाम को समझने वाले, समझाने वाले और बचाने वाले हैं। नाना जान से जो हमने पाया है, हमारे सीने पर भी है, हमारे लबों पर भी है, हमारी निशानी में भी है, हमारे ब्लड में भी है, हमारी रगों में भी है और हमारे वजूद में भी है। चलो रसूल हाशमी की बारगाह से जो मिला है वो सब हमारे पास है, लेकिन चलो आगे चलते हैं। जब आगे गए तो बाबा जान की बारगाह में लेकर के पहुंच गए, हैदर कररार की बारगाह में लेकर के पहुंच गए, अली मुर्तजा की बारगाह में लेकर के पहुंच गए, हजरत शेर खुदा की बारगाह में लेकर के पहुंच गए। काबुल इल्म जो इल्म का दरवाजा है उस बारगाह में लेकर के पहुंच गए। और जब अली की बारगाह में पहुंचे तो अली ने बताया इश्क किसे कहा जाता है, उल्फत किसे कहते हैं, मोहब्बत किसे कहते हैं, नबी से लगाव किसे कहते हैं, रसूल आदमी से रिश्ता किसे कहते हैं। हजरत अली ने बताया कि सुन, नबी से मोहब्बत नहीं है तो सजदे की कोई कीमत नहीं है। हजरत अली ने कहा यही नहीं छोड़ा जाएगा, चल नबी की बारगाह में चल। अब तसव्वुर में थोड़ा सा डूब जाए। जब अली नबी तक लेकर के पहुंचे, रूहानी कनेक्शन है और ये बैत वाला जो मामला है वो रूहानी ही है, ये रूहानी कनेक्शन है। तसव्वुर में डूबे थोड़ा सा। अली नबी की बारगाह में लेकर के जा रहे हैं। या रसूल अल्लाह हमारा चेहरा इस काबिल नहीं, या रसूल अल्लाह हमारा वजूद इस काबिल नहीं, या रसूल अल्लाह हमारी जिंदगी इस काबिल नहीं, या रसूल अल्लाह हमारी दुनिया इस काबिल नहीं, या रसूल अल्लाह हमारा कारनामा इस काबिल नहीं कि आपको चेहरा दिखाएं।